Hello everyone, Namaskar. So one of the things that you notice when you spend too much time analyzing prelims ka pre-IQs is that एक तो questions difficult तो होते ही हैं because obviously you require a lot of knowledge in order to clear them, but then there are some patterns that emerge with the kind of options that have been coming. Like for example, this is the kind of options that started coming in the year 2022. Only one, two, only three, and so on. Now इससे पहले ऐसे कभी ऑप्शंस यूज नहीं होते थे, बट 2022 में सिर्फ 8 क्वेश्चन आए थे, 23 में 45 सब क्वेश्चंस, 24 में they have reduced and now every year some questions come of this sort, but this year obviously was an outlier and because of this year was very difficult क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस जब इस काइंड के आ जाते हैं ना, तो मतलब चाहे आपको बहुत नॉलेज हो, it's still difficult to solve these kinds of questions because you need exact knowledge. Now not just this, when I further look into it, तो assertion reason kind of जो questions हमारे हैं 2023 में they restarted coming. They used to come a lot before, but 2023 में they started coming all over again. And then 24 में थोड़े और आए, 25 में और कम हो गए. धीरे धीरे इसका ट्रेंड डाई आउट हो रहा है. क्यों डाई आउट हो रहा है? Because assertion reason की बजाय UPSC is preferring these kinds of questions now, where 3 statements are given. Now 2024 में this kind of question came for the first time. 2024 में पहली बार ये आया था, and then 25 में very next year 10 questions of such kind came. तो हो क्या रहा है ना, यूपीएससी क्या करता है, हर साल कुछ एक नया पैटर्न ट्राई करता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल के, एंड अगले साल फिर उस क्वेश्चन को बम्बार्ड कर देता है. तो सिमिलरली देयर वाज अ पैटर्न like this in the 2025 paper where one question came which was different from all the others, and like we'll talk about that in the course of this video. Now before we get there, I want to talk about कि भाई what exactly is making prelims difficult. Knowledge is obviously one thing, right? If I don't have the knowledge, this is going to be an absolutely tough paper. But assuming that knowledge is a given, आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, knowledge मेरे पास है, now it becomes easy to confuse people with the format of the questions. Let me tell you how. Look at this for example, कि भाई ये same concept है, this the first statement over here and over here, they're pretty much talking about the same thing, but the format in which it is given is very confusing. Isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent, right? कॉन्टिनेंट पे आइसोथर्म ऐसे जा रहा है, ओशन पे आइसोथर्म ऐसे जा रहा है. इतना कुछ बोल रहा है. यहां पे क्या बोल रहा है? आइसोथर्म मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट? इन जनवरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म बेंड्स इक्वेटर वर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मास. लैंड मास क्या है? कॉन्टिनेंट. इक्वेटर वर्ड क्या है? डाउन टुवर्ड्स द इक्वेटर. एंड poleward while crossing the ocean. Same thing. But just because the language is a little bit confusing, it is very easy कि यार मतलब ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं. Not just that, ये वाला question जो है, I can simply solve on the basis of knowledge. If I've seen those isotherm के maps, I will be able to solve basis just knowledge of कि भाई हाँ जी isotherm ऐसे जाते हैं कि नहीं जाते हैं. On the other hand, because अब ये question क्या है, this is statement 1 and statement 2 and I have to tell the relation between the two statements. It is not just knowledge but the application of that knowledge. कि भाई अच्छा जा तो ये रहा है बट इस कारण से ही जा रहा है या किसी और कारण से जा रहा है. तो नाउ सडनली द डेप्थ ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग हैज इंक्रीज्ड. कॉन्सेप्ट सेम है, नॉलेज सेम रिक्वायर्ड है, बट मुझे और थोड़ी उसके बारे में चीजें करनी है जस्ट बिकॉज द वे दैट द क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड हैज चेंज्ड. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल एंड दिस इज, आई थिंक अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अ नंबर ऑफ पीपल विल मेक दैट मिस्टेक. ये क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? 1 2 3 none. This is nothing but this. क्या? How many of them contain plastic? Only one, only two, all three, none. But just because यहां पे only one, only two, only three नहीं लिखा, 1 2 3 लिखा है, I'm sure, damn sure that somebody will confuse कि भाई 1 means this one, 2 means this two. And just because of the way that the question is presented, there will be people making mistakes, right? तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमें इससे डील करना है. एंड इसके लिए नेचुरली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट वी फिगर आउट कि भाई अच्छा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑप्शंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स ओवर द लास्ट 5 इयर्स. तो एक ग्लोसरी ऑफ प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो देन ऑब्वियसली देयर आर क्वेश्चंस विद जहां पे स्ट्रेट आंसर आपसे पूछ लिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 ऑप्शन इनमें से चूज करना है. सिमिलरली इसका एक और वेरिएंट हो जाता है जहां पे 2-3 स्टेटमेंट दे दिए हैं एंड उनके बेसिस पे आपको सीधा 4 ऑप्शन में से चूज करना है. आपको स्टेटमेंट्स चूज नहीं करनी है,
ऑप्शन यहीं पे सीधा बता रहा है, ये तीनों चारों चीज एक को ही डिफाइन कर रही है, राइट? सो दीज आर स्ट्रेट क्वेश्चंस. देन देयर आर क्वेश्चंस where a lot of information is given. ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना इस टाइप का, this is generally half of the page of the entire paper, one page. आधा पेज पे ये क्वेश्चन है, सेम डायरेक्ट है, बट इट इज आस्किंग यू डेफिनेशंस. तो डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस इस तरीके के हमारे आ रहे हैं. एक ये नया टाइप ऑफ क्वेश्चन 2025 से आना शुरू हुआ है हमारा, जहां पे आपको इकोनॉमी का फिर से, राइट, नॉट नॉलेज बट एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज is being asked. You have read fiscal deficit, you have read revenue deficit, right? यहां से आपको पूछ लिया प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बेस्ड ऑन दीज नंबर्स कैलकुलेट करके बता दो. अब सीसैट का क्वेश्चन लग रहा है, बट अगेन आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है, यू शुड बी एबल टू डू दिस. जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट इन विच इट वाज प्रेजेंटेड, अ नंबर ऑफ पीपल गॉट दिस रॉन्ग, क्योंकि दे आर लाइक कि भाई नहीं नहीं ये तो डिफिकल्ट हो जा रहा है. नाउ और ऑप्शंस हमारे जो आते हैं टू स्टेटमेंट वाले, तो ये क्या रहता है, 1 2 both none, right? These are the four options that you get. दो स्टेटमेंट दी है, 1 2 both और none. सिमिलरली इनको ऐसे भी लिखा जाता है, 1 2 both neither, 1 only 2 only, या रोमन न्यूमरल्स में है, यहाँ पे आपका अरेबिक न्यूमरल्स में है. तो ये चीज जस्ट बिकॉज ऐसे ऐसे अलग तरीके से यूपीएससी कभी कभार दे देता, कंफ्यूज होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है. प्रीटी मच द सेम आइडिया. Now, multi-statement is where things get a little tricky, right? Multi-statement में क्या अब हो रहा है कि भाई 3 4 statement, more statements, up to 7 statements UPSC has given at times, which is rare. सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 7 statement उन्होंने दिए हैं. But now multi-statement में 2 टाइप रहते हैं हमारे, which of and how many. Which of माने कि अब ये 3 में से वो पूछ रहा है कि अच्छा इन तीनों में से कौन से सही हैं, एंड आपको स्पेसिफिक नंबर पूछ लिए गए हैं. तो इसमें आप जनरली देखोगे कि यहां पे बोला है 3 इज रॉन्ग, यहां पे बोला है 1 इज रॉन्ग, यहां पे बोला 2 इज रॉन्ग, एंड ऑल आर करेक्ट. इफेक्टिवली आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भाई कितने गलत हैं. नाउ whenever you are asked this kind of question, how many of these statements given are correct, so this becomes a bit of a problem. Why? Let me tell you. यहां पे प्रॉब्लम हमारी क्या होती है कि जब मैं ओनली वन की बात कर रहा हूं, what does only one mean over here? Only one could mean this also, only one could mean this also, only one could mean this also. तो overall 1 2 3 3 ऑप्शन कवर्ड हैं सिर्फ ओनली वन में. ओनली 2 की जब मैं बात करता हूं, तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं, all these 3 options are covered in this only 1 and 2. That 1 and 2 are correct, this 1 and 2, 2 and 3 are correct, 1 and 3 are correct. राइट, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली चीजें यहां पे चल रही हैं. ऑल ऑफ देम दिस इज फाइन, नन ऑफ देम दिस इज फाइन. बट दिस इज वेयर द डिफिकल्टी इन दीज क्वेश्चंस लाइज. क्यों? क्योंकि जब भी मैं ओनली वन और ओनली 2 कर रहा हूं ना, मेरा गेस भी चल रहा है थोड़ा बहुत, अंदाजे से भी ये क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं कुछ लोगों के, ऐसा नहीं है नहीं हो रहे हैं. एंड दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग एवर कि भैया पता नहीं क्या टेस्ट करना चाह रहा था यूपीएससी. यहां पे वो क्लियर टेस्ट हो रहा है कि भाई आपको पता है गलत स्टेटमेंट कौन सी है. यहां पे हाँ ठीक है भाई, अंदाजे से भी आपकी हो रही है. तो दिस इज व्हाई these kinds of questions become a little more difficult. Now 3 स्टेटमेंट्स में अगर आपके ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो these are the best sort. क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत ही कम चूज करने को आपको पड़ रहा है, एंड समटाइम्स इट जस्ट हैपेंस कि भाई अच्छा मैंने स्टेटमेंट 2 अगर एलिमिनेट कर दिया तो मेरी जिंदगी काफी आसान हो गई. इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर आप एक भी स्टेटमेंट कुछ एलिमिनेट कर पाते हो, if I eliminate any one statement, let's say I eliminate first statement, I choose from B and D. I eliminate second statement, I choose from A and B. I eliminate third statement, so then I choose from A and C. In these cases, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर एक भी स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर पाते हो, टेक अ शॉट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है. कुछ भी कर लो, अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए ना और एक भी स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर पाते हो, टेक अ शॉट, डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. क्योंकि दिस इज वेयर, लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट प्रोबेबिलिटी. लेट अस से यू आर डूइंग 10 क्वेश्चंस विद अ 50% प्रोबेबिलिटी. 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? 5 will be correct and 5 will be wrong. As simple as that. 5 correct meaning plus 10. 5 incorrect माने 5/3.
negative 5 into negative 2/3, right? Negative 10 by 3 is equal to 3.33. Effectively, you end up at plus 6.67 marks. 50% प्रोबेबिलिटी पे ये मेरा बनता है कि भाई अगर मैं 50% प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन कर देता हूं बिना सोचे कि भैया अच्छा यार क्या होगा, नहीं करने हैं तो दिस इज वेयर इट वर्क्स अ लॉट इन योर फेवर, बिकॉज एक स्टेटमेंट करते ही आप 50% प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हो. बट इसमें अगर मेरे को सिर्फ एक स्टेटमेंट पता है, राइट, कि लेट अस से दिस इज रॉन्ग, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू नैरो डाउन, क्योंकि मेरे को क्या पता है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम. अच्छा ठीक है, एथेनॉल नहीं होता, नॉट द आंसर ओवर हियर, बट जस्ट फॉर द स्टेक ऑफ आर्ग्यूमेंट. नाउ इट कुड बी ओनली वन और इट कुड बी ओनली टू और इट कुड बी नन. आई नीड अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस rather than these kinds. तो रिस्क मुझे कहां लेना है, मुझे इधर लेना है. नाउ 3 स्टेटमेंट के बाद हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर आर 4 स्टेटमेंट क्वेश्चंस. 4 स्टेटमेंट क्वेश्चंस में जनरली आपको इस तरीके का ऑप्शंस अभी भी मिल रहे हैं, ये आते हैं, बट 4 स्टेटमेंट में आते आते ये वाले ऑप्शन थोड़े हमारे कम हो जाते हैं, होते हैं फिर भी. एंड जब ये 4 स्टेटमेंट में यहां पे आते हैं तो देन दीज बिकम इवन हार्डर, क्योंकि पहले हमने देखा था दैट दे वर कवरिंग 8 ऑप्शंस, राइट. अब यहां पे 8 की बजाय they'll be covering a lot more options. So in this case, again, if I can eliminate a few statements, I want to take a shot over here. I want to avoid taking risks over here. इस तरीके से मुझे देखना है इन चीजों को. मतलब the reason why we're looking at कि भाई इतने options हैं, क्या है, कैसे हैं, is because there are some areas where me taking a risk is rewarded. It rewards me when I take a risk here. It may not reward me equally when I take a risk here. Now, 5 स्टेटमेंट के भी ऑप्शन हमारे पास आए हैं. अब 5 स्टेटमेंट में आप देखोगे ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5 कि एटलीस्ट 2 तो करेक्ट है ही. अब वो कौन से हैं फिगर आउट कर लो. हालांकि मतलब दिस इज ऑल्सो रेयर. 5 स्टेटमेंट्स में 5 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट, दीज ऑल काइंड्स ऑफ मल्टी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हो जाते हैं ना, 4 तक कॉमन रहता है, 5 के आगे और ये रेयर हो जाते हैं. तो देयर हैव बीन सम क्वेश्चंस जहां पे 6 स्टेटमेंट्स भी हैं. And there has been only one question, I think it came in 2022 or 21, where 7 statements were given, right. तो एक जैसे आई थिंक 2020 में एक क्वेश्चन भी आया था which was 6 statements about the state of AI. वेरी वेरी रॉन्ग नाउ, बट बहुत सारे जब यहाँ पे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो इट इज मच इजियर इफ आई फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट्स. If I lead by wrong statements, it becomes easier to solve these questions, क्योंकि जब सारी चीजें हैं, possible बहुत कुछ हो सकता है, maybe I know, maybe I don't, but I have to find what is blatantly wrong in these kinds of questions so that my life becomes easier, क्योंकि तब फिर मैं options के साथ यहाँ पे खेल सकता हूँ, right. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इतने सारे ऑप्शंस देख के ये सब करके क्या है, the end goal of this is that अब अगर इस साल प्रीलिम्स में आपको 8 स्टेटमेंट दे दिए, या भाई आपको वो CDS 2 की तरह ओनली 1 ओनली 2 की बजाय 1 2 3 लिख के दे दिया, तो भाई पेपर के बीच में मुझे घबराना नहीं है. आई डोंट वांट टू बी सडनली इन दैट कि भाई अच्छा ये कैसे हो गया, अच्छा ये 1 2 3 वो वाला है या नहीं है. बी केयरफुल, बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, अपना स्ट्रेस नहीं लेने का है. एंड इफ यू आर ओके विद दिस आइडिया कि भाई देखो अब इसमें फट रही है तो सबकी फट रही है, एंड विद दैट आइडिया if I keep a calm mind in that moment, I will be able to deal with it. अब वो 8 स्टेटमेंट आए, 9 स्टेटमेंट है, वो 10 स्टेटमेंट पूछ ले, मुझे नहीं फर्क पड़ता. I will simply focus on the areas that are working in my favor, where I should take a risk and where I should not take a risk. Right. तो अब और टाइप के क्वेश्चंस हमारे कैसे आ रहे हैं, टेबल्स, राइट. अ लॉट ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ टेबल्स हैव बीन कमिंग. तो लाइक फॉर एग्जांपल टेबल्स में भी अब ये ऑप्शंस अपने रहते हैं, या टेबल्स में अपने इस तरीके के ऑप्शंस भी रहते हैं. हालांकि these kinds of options in the tables have not been asked for the last couple of years. More often अपने यही चीज चल रही है. अब इसमें एक और चीज अगर देखी जाए तो टेबल्स में भी हमारे 3 कॉलम्स बनते जा रहे हैं, तो these become the hardest questions. And if you can, मतलब अगर ये क्वेश्चंस
वही 2023 वाली प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होती। 23 में क्या प्रॉब्लम हुई थी कि भाई जो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले क्वेश्चंस थे, they are obviously hard questions, but if half the paper is made up of those questions, you have to try them, right? So if these are not 30 questions in your paper like this, you can skip them because these are the hardest questions. क्योंकि क्या है, आपको 9 pieces of content, यहाँ पे 12 pieces of facts आपको याद रखने हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाओ। एंड कहीं एक जगह पे मिस्टेक होती है तो भाई मतलब आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो दैट इज व्हाट इट इज, जहां पे मेरा रिस्क ज्यादा हो रहा है कि एक छोटी सी गलती, मुझे 11 चीजें सही पता थी, आई न्यू 11 थिंग्स राइट, आई जस्ट डिड नॉट नो वन, इवन देन आई कैन गेट इट रॉन्ग। तो इज दिस नॉट very very heavily not in your favor? So therefore in these sorts of questions, they are tough and fact heavy. If they are not too many, if they are not too many, you can choose to skip them. And please be prepared for कि अब 3 कॉलम के बजाय 4 कॉलम भी दे सकते हैं, 4 कॉलम की बजाय मतलब लंबी टेबल भी दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस एंड ट्रेंड्स यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर। पेपर में जाके ये मत बोलो कि भाई ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, आ सकता है। हमको क्या करना है कि भाई देखो, इस एरिया में जब जितना ज्यादा कॉलम और रो बढ़ जाते हैं, माने कि टेबल पहले मेरी सिर्फ इतनी आती थी, राइट, अब मेरी टेबल कैसी आ रही है, अब इसमें अगर एक और यहां पे भी ऐड हो जाए तो स्ट्रेस नहीं लेने का, स्किप करने का। एंड इफ यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ईच ऑफ द, लाइक 16 facts that are required over here, sure, go for it, but most of the time a better strategy in this case will be कि भाई मैं skip कर दूं इसको, क्योंकि यहाँ पे छोटी गलती मेरा नंबर फिर भी डुबाएगी, even when I know most of the things right over here, right? तो अब ये जो हमारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, there's a very simple way in which you can go about them. A very simple way क्या है, स्टेटमेंट 1 के एंड पे आप बोलो because and then read statement 2. European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently because the European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040, therefore develops to all of its clean technology by that time. Makes sense. अगर ये fact सही है तो answer should be A, right? That is what I want to keep in mind. But अगर first statement के बाद because बोल के मैं second पढ़ता हूँ और मतलब कुछ समझ नहीं आता कि यार ये जुड़ा कैसे है, so then अगर fact सही है, answer will be B. Making sense? इट इज एज सिंपल एज दैट। मुझे बस एक बीच में बिकॉज बोलना है, एंड अगर वो जो कंबाइंड सेंटेंस मेरा बनता है, इट इज मेकिंग लॉजिकल सेंस फॉर मी, दैट इज व्हाट इट इज, आंसर विल बी ए। इफ इट इज नॉट मेकिंग लॉजिकल सेंस, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली दैट बोथ ऑफ दीज ट्रू आर ट्रू, देन माई लाइफ बिकम्स easier, I go for B. Now recently ये 3 स्टेटमेंट वाली जो चीजें आ रही हैं, अब 3 स्टेटमेंट में क्या होता है हमारा, both statement 1 and 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Second क्या आता है, both statement 2 and 3 are correct but only one of them explains statement 1. Right? कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी हमारी बढ़ गई है। नेचुरली मेरे को दोनों के साथ बिकॉज लगा के अब यहां पे खेल के देखना पड़ रहा है कि भाई ए बिकॉज बी एंड ए बिकॉज सी। ये नहीं बोला है कि भाई बोथ ऑफ देम आर टुगेदर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वन, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन, 2 explains 1 and 3 explains 1. That is what is being asked over here. अगर ये कोई गलत होती है, only one of statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1. Neither statement 2 nor 3 is correct. अगर गलत है तो आपका उधर हो जाता है। तो ये because वाली ट्रिक को जरूर अप्लाई करो, and this is where we come to the other idea कि भाई 4 स्टेटमेंट वाली भी चीजें कुछ आ सकती है। Obviously it will be difficult, क्योंकि अब क्या होगा, जैसे ही 4 स्टेटमेंट हमारे हो जाते हैं ना, पेपर हमारा बहुत ही ज्यादा हो जाता है लेंदी। एंड जब इतना लेंदी पेपर हो जाता है तो फिर क्या होता है, भाई पेपर कंप्लीट नहीं हो रहे, लोगों के पेपर कंप्लीट नहीं हो रहे, कट ऑफ फिर से नीचे जा रहा है। एंड यूपीएससी आल्सो डजंट वांट कि भाई कट ऑफ आपका 55-60 नंबर चला जाए। व्हाई? बिकॉज इट आल्सो डजंट शो वेरी वेल ऑन द पेपर, एंड लाइक द काइंड ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी, वो हो क्यों रहा है, इसलिए क्योंकि भैया आपने पेपर ही इतना खराब बनाया कि इतना कर ही नहीं पाया कोई। It is not because that people are not smart enough, it is because you designed the paper wrong. So therefore I feel that it is unlikely that 4 statements will come. बट अगेन कभी कभार जब दिमाग सरकता है तो सरक जाता है, डाल सकते हैं। नाउ दिस इज वेयर वी कम टू द कैच इन 2025।
तो आपने देखा कि भाई अब तक क्या ऑप्शंस आ रहे थे हमारे, both statement 2 and statement 3 are correct but only one of them statements explains one. तो ये एक और इकलौता क्वेश्चन हमारा ऐसा आया था where it says both statement 1 and 2 are correct and statement 1 explains statement 2. ऑपोजिट कर दिया इन्होंने। मतलब अब तक क्या हो रहा है कि भाई स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट मान के चल रहे हैं। In all of these three statement questions, statement 1 is assumed to be correct because of the options. There is no option over here which says statement 1 can be wrong. Now suddenly there is only one question जहां पे ये चीज चेंज हो गई है and this is where you have to be careful. क्योंकि क्या होता है ना, अब मैं पैटर्न मैचिंग कर रहा हूं, मैं देखता हूं क्या तीन स्टेटमेंट आ रही हैं, आई अज्यूम दैट दिस इज हाउ द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी, कि ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, डी में क्या होगा। बट हियर सडनली द रिलेशनशिप हैज चेंज्ड। यहां पे पहले क्या था, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। 1 and 2 are correct and 1 explains 2. The reason, मतलब the relationship direction has completely changed and this is what I want you to be careful about, कि अगर 2026 में इस टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शन में बस घुमा दें आपको, देखो नॉलेज की अभी भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के आप ये कर लोगे जस्ट बिकॉज ऑप्शन चेंज हो गया। नॉलेज की मेरे पास जरूरत है, बट ये नीडलेस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मैं फिर भी कंफ्यूज होकर गलती कर सकता हूं एंड दैट इज व्हाट द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज, वेयर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि यार ऐसी चीजें होंगी, टेंशन नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। नाउ अनदर वेरी कॉमन सिली मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक इज कि भाई यार ये ना छोटा सा एक नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। अब ऐसा कुछ इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं ये कुछ नया ही तरीके का आ गया। क्वेश्चन टाइप वही है, बेसिक ऑप्शंस आपके 1 2 2 3 1 3 एंड ऑल 3, ऐसे ही ऑप्शंस अपने रहते हैं, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट। बट कभी कभार क्या होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 82, दिस इज क्वेश्चन नंबर 96। नाउ अगर आपका सेट और आपका दिन खराब है तो क्या होगा कि दिस इज वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू सी इन द पेपर एंड बाय द टाइम दैट यू गेट टू दिस क्वेश्चन ना, यू विल बी टायर्ड नेचुरली। 2 घंटा जब मैं फोकस के साथ एकदम ऐसा स्ट्रेस में वो एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठता हूं, आई एम ड्रेन्ड बाय द एंड ऑफ द पेपर, राइट? आई एम मेंटली फिजिकली एंड लाइक ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, और फिर जाके ये छोटा सा ये नॉट मेरे सामने से कभी कभार स्किप हो जाता है, राइट? सो दिस इज वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई डबल चेक एक बार क्वेश्चन को जरूर करो कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस सॉर्ट ऑफ अ मिस्टेक इज वेरी वेरी पॉसिबल इन ये जो हमारा सीडीएस वाला ऑप्शन हमने देखा था। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स बोला है इसमें, ऑप्शन नहीं बोला है, बट अगर सिर्फ मैं ऑप्शन देख के करूं ना, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू मेक दिस मिस्टेक। तो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू कीप इन माइंड, दैट यहां पे आपने ऑप्शन देख के सोच लिया, यहाँ पे नॉट करेक्ट की बजाय आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स मार्क कर दी, तो फिर गलती किसी और की नहीं है, आपके फोकस की है। एंड नेचुरली वो फोकस को रीसेट हम थोड़ा थोड़ा बीच में कर सकते हैं कि भाई पानी पी लिया बीच में, 2 सेकंड का अपना सांस ले ली, रुक गए। दीज आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स एंड थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन द एग्जाम। नाउ एक और अब यहाँ पे ये रहता है कि जो आधे आधे पेज के बन जाते हैं, कि एक तो ऑप्शन इसमें हमारा था ये, राइट, जो शुरू में हमने देखा था कि देयर आर 4 डेफिनेशंस दैट आर गिवन और मीनिंग ऑफ द टर्म इज बीइंग आस्क्ड। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स, सिर्फ एक इसमें से करेक्ट है। बट अब डिफरेंस क्या हो रहा है, व्हेन आई कम टू दिस क्वेश्चन, ये तीनों स्टेटमेंट मुझे पढ़नी है और उन तीनों स्टेटमेंट का रिलेशन अंत में आके मुझे देखना है कि भाई अच्छा कौन सी सही है नहीं है। एंड नाउ दिस इज वेयर सॉर्ट ऑफ आपने देखा होगा कि भाई अगर आप बेयर एक्ट्स पढ़ने की आदत है आपको, if you are used to reading bare acts, this sort of language will make a lot more sense to you, because ये अपना जो constitutional language है, legal language है, उसी टाइप से यहाँ पे लिखा गया है। On the dissolution of the house of the people, the speaker shall not vacate his her office until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution। अब बोलने को बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे हो गया है, स्टिल दिस इज हाउ इट इज गिवन इन द बेयर एक्ट्स। आप जाओगे देखोगे इट्स वेरी सिमिलर ओवर देयर। अगर मैं थक चुका हूं तो देन इट इज इजी फॉर मी टू मिस समथिंग, मिस इंटरप्रेट समथिंग, एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि भाई इन द एग्जाम
मेरे को नॉलेज को यूज करना है, मेरे को ऑप्शन किस तरीके से परोसा गया है उससे नहीं घबराना है. फॉर दिस आई हैव टू कीप एन ओपन माइंड, आई हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट. मतलब आई हैव लाइक टोल्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स कि भाई मेडिटेट करो, थोड़ा सा 30 मिनट्स ऑफ डेली मतलब एरोबिक एक्टिविटी कर लो, बिकॉज दीज आर टू थिंग्स. नाउ आई कीप रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. Abraham Lincoln said that if I had 8 hours to chop down a tree, I'll spend 6 hours sharpening the axe. You are preparing for an exam where your brain is your axe. You need to sharpen that axe. And the two best things that you can do for that is meditation and workouts. 30 minutes of aerobic activity improves memory, improves attention, improves focus. सेम थिंग विद मेडिटेशन कि भाई दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस आपकी चल रही हैं एंड इस मोमेंट पे आप नहीं करोगे तो फिर लाइक वो नहीं होता है. क्योंकि ये जो सारी चीजें जो ऊपर नीचे आगे पीछे, यूपीएससी इज डूइंग anything and everything possible in its power to distract you, to make you choose the wrong option even when you know the right thing. उसमें हमको नहीं पढ़ना है, तरीके से हमको चलना है, तो चीजें ये हो जाती है. That's it for this video. If you have any doubts, please let us know in the comments. All the best.